لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم. OT کا قیام ہے اور جو نیا RO پلانٹ ہم نے اس ہاسپٹل کے لیے لگایا ہے اس کی ایک افتتاحی تقریب ہے. تو میں سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے یہاں گزارش کروں گا ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمن مینیجر ہیں جناب محمد شعیب صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تھوڑا سا ہاسپٹل کا بیک گراؤنڈ اور اس کا ایک ورکنگ اسٹائل اور ڈائنامکس بتائیں یہاں پہ تمام لوگ. اس ہاسپٹل میں RO پلانٹ اور آپریشن تھیٹر کا قیام بیسیکلی اگر کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے کوئی 5 سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے اور میں کارپوریٹ اور بزنس کمیونیکیشن کا آدمی ہوں. اور خالد بھائی نے جب مجھے پہلی دفعہ یہ موقع دیا یہاں کام کرنے کا تو ہمارا بیسک ٹاپک کہہ لیں یا بیسک کورس آف انفراسٹرکچر کہہ لیں وہ یہی تھا کہ ایک اس ہاسپٹل کو اس لیول کا کریں, اس پروڈکٹ کو اتنا بہتر کریں کہ آگے بھی ہم اس کے حوالے سے اس چیزوں کو میچور کر سکیں یا اس کو مارکیٹ کر سکیں. تو OT کی جہاں تک بات ہے, OT میں جو سلسلہ مرحلہ وار ہوا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. پہلے یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس جنرل OT کو مور اور لیس بہت اچھا اور اس مارکیٹ کمپیٹیبل بنائے کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے چنیوٹ جاتا ہے سرجری کرانے یا آغا خان جاتا ہے یا لیاقت جاتا ہے, اوبیسلی ہم آغا خان اور لیاقت کے کمپیٹیبل مارکیٹ تو نہیں دے سکتے, لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو کمپیٹیٹیو ریٹ اس کے چنیوٹ میں ہے یا جو کمپیٹیٹیو ریٹ اس کے کریک میں ہے تو اسی کمپیٹیٹیو ریٹ میں وہ ساری سرجریز یہاں پہ کریں. اور انشاءاللہ جس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ انشاءاللہ اور آگے جائے گا کیونکہ ابھی یہ ایک جنرل OT ہم اس کا جو افتتاح کریں ایک جنرل OT ہے. آہستہ آہستہ اس میں آرتھوپیڈک اٹیچمنٹس اور دوسری جو چیزیں وہ بھی ہم ایڈ کرتے جائیں گے. ساتھ میں یورولوجی جنرل کی اور جتنی اقسام ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے اور انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ اللہ نے چاہا تو یہاں سے ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ RO بیسک نیڈ ہے. جب آپ OT اکوپمنٹ لگاتے ہیں یا OT کے سارے لوازمات آپ ہاسپٹل کو دیتے ہیں تو RO واٹر جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب اسٹرلائز کرنے کے لیے انسٹرومنٹس کی اچھی کوالٹی کے لیے اس RO کی جو پروڈکٹ ہے یا RO کا جو پروڈکٹ واٹر ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ پیکیج آپ سب کے لیے ہم نے پرووائڈ کر دیا. آگے اس پہ اور محنت کریں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کو اور اوپر لے کے جائیں گے. وائٹ کروں گا یہاں پروفیسر شاہ محمد نوناری صاحب کو. اشراق کا نباتات کا حیوانات کا پالنے والا ہے اور لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین خاتم النبیین کہلائی. سب سے پہلے میری جانب سے السلام علیکم. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی محترم جناب محمود الحسن صاحب, ڈاکٹر اسلم جلالی صاحب, ہمارے درینہ ساتھی درینہ کرم فرما جو اس وقت ساسی کے ڈائریکٹر بھی ہیں, پروفیسر شاہ محمد نوناری صاحب, طاہر انصاری صاحب, اومی منشا صاحب, حیات صاحب, سلمان صاحب, ڈاکٹر فرا صاحبہ کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن رہا ہے جہاں خدمت کے بے تحاشا شعبوں میں یہ کام کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا بار بار اس کو کہنا یا اس کو بتانا کہ خدمت ہم نے اپنے گھر سے شروع کی, اپنی غریب نادار لوگوں سے شروع کی اور عوام الناس میں آج یہ پھیل گیا ہے اور کم و بیش غریب اور نادار لوگ اس ادارے کے مختلف شعبوں سے, چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ ہاسپٹل ہو. تو ہمارا مشن اور ہمارا عزم یہ تھا, ہمارے بزرگوں کا بھی, یہ ہمارا بھی ہے اور ہمارے بعد بھی آنے والوں کا ہے میرا اس ادارے سے. لیکن جب موقع ملا تو صرف اس بنیاد پر کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو اس ادارے میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس بنا پر اس کو ڈاکٹر نے واپس کر دیا. تو الحمدللہ ہمارا عزم اس سے اور آگے بڑھ کر ہے. ہمارے مطلب یہ ظاہر ہے کہ انسان کو جینے کے لیے جہاں ہوا پانی اور دیگر چیز چاہیے وہاں جو ہے نا دیگر معاشی ضروریات ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ. تو
तो इस इदारे के साथ भी वो ज़रूरियात हैं। तो जो भी हम चार्जेस लेते हैं वो इतने इकनॉमिकल होते हैं, इतने सस्ता और अर्ज़न नरखों पे होते हैं कि मुकाबला यहाँ हम किसी से करने नहीं बैठे, लेकिन खिदमत के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हम उसी तरह खिदमत करते हैं कि अगर हमारे इदारे का भी कोई हमारे इदारे के से वाबस्ता लोगों का, हमारी बिरादरी का या हमारे घर का कोई मरीज यहाँ सर्जरी के लिए आया है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है तो उसको वो सहूलियत उसको भी मैसर हो। तो माशरे में आजकल जाहिर है आप मुकाबला अपनी स्किल्स बढ़ाकर, अपनी एजुकेशन बढ़ाकर में तकरीबन मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ दीगर बातें कही हैं वहाँ अपनी इबादत या रियाजत या हज या रोज़े के साथ साथ तकरीबन 70% जो है ना मामलात के ज़िंदगी है इंसानों की, और उसमें दुखी इंसानियत की खिदमत के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों की या ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जो हमारा ख्वाब है कि इधर सियाम की अवेलेबिलिटी हम करें और उसके लिए हम कोशा हैं, तो यहाँ तक हमें कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। हमसे काम में गाड़ियाँ बरतते हुए या इस काम में मजबूर माफरमा और इन लोगों ने जो हिस्सा लिया है हमारे तमाम मरहूम रहमत करना और इस अंजुमन को और इस अबद वाला करा बेबदल तरक्की अल्लाह फरमाए और जितने इंसान को हो सके अल्लाह ताला से करने की तरक्की अल्लाह फरमाए और हम सब के साथ पैदा फरमाए। आज बुलाओ यार। असल में हजरात बहुत सारे हैं और कैंची बहुत छोटी है, सारे लोग महमूद भाई का हाथ पकड़े ना। आइए डॉक्टर साहब, चले एक मिनट आइए। आइए डॉक्टर साहब आइए, मैं मुझे चलता आ रहा हूँ। जब मेरी नारी साहब पे दे दो दिखाऊंगे सही ना साहब ये अपना जगह का हिस्सा ये छोटी सी कोशिश थी। मुझे अभी याद आ रहा है कि महमूद भाई के घर हम गए हुए थे, तो इन्होंने एक बात कही थी उस वक्त, आज से कितने साल पहले, इनकी ख्वाहिश थी कि एक ओटी होना चाहिए, कि एक ओटी होना चाहिए। और इत्तेफाक से हम उस दिन गए थे इन्हें दावत देने के लिए कि आइए आप, आइए अमेरिका में हम थे वहाँ से आए बेटा, हमने कहा था कि आप आए, और तो इनका एक ख्वाब आज पाया पूरा। मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी सर्वेक्षण दे दो कि टेबल के मुतालिक एनेस्थीसिया मशीन और दीगर नहीं होता। एक्चुअली सियाम एक अपना अलग से इक्विपमेंट है और ये इसकी हाइट जो है इतनी है कि सियाम जो है वो इसके ऊपर वर्क करता है और इसकी जो टॉप है वो सियाम कंपेटेबल है, इसमें से जो है वो आप पर नजर है। तो इसके साथ साथ जो है हमने एक लेटेस्ट वर्जन की इस वक्त एनेस्थीसिया मशीन जो है स्टीवा 5 जो इस वक्त मार्केट का अपग्रेड मॉडल चल रहा है, स्टीवा 5 जो है वो हमने इंस्टॉल की है। इसके साथ पेशेंट मॉनिटर 5 पैरामीटर हमने इंस्टॉल किया है, सर्जिकल डायग्रामी, सक्शन मशीन, जो भी एक ऑपरेशन थिएटर की बेसिक जो नीड्स होती हैं वो हमने कोशिश की है कि फुलफ़िल कर। इन फ्यूचर विद इन डेज़ जो है यहाँ पर सियाम और लेप्रोस्कोपिक सिस्टम जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और उसके बाद आप इस एरिया में जैसी भी सर्जरीज करना चाहें, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड और जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी से रिलेटेड सारी आप बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, आप लोगों को बहुत कामयाबी
और इसी तरह से है और दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह इसके लिए हमने सिविलाइजेशन का भी ख्याल रखा है, सर्जन के वॉश एरिया का भी ख्याल रखा है। जैसे ही आप डोर से इंटर होंगे तो हमने स्टेनलेस स्टील का जो है एक स्क्रब एरिया जो है वो और इसका जो सर्जन की सिटिंग और उसके साथ चेंजिंग रूम जो है वो बाहर दिया है, और अंदर जो है वो लेन और इसके लिए हमने एक स्टोर इसके अंदर दे दिया ताकि काफ़ी ज़रूरत हम काफ़ी कपड़े चाहिए तो उस पर भी हमने स्टेनलेस स्टील का जो है ऑपरेशन थिएटर किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन है। ऑपरेशन थिएटर अगर अच्छा हो, इस ऑपरेशन थिएटर की एक खसूसियत ये है कि ये स्पेशस है, खुशादा है। अच्छा ये बड़ी बात है ना। अच्छा ये सियाम जो है ना, आप तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि सियाम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सियाम जो है ना, द बैक ऑफ एनी ऑपरेशन थिएटर, अच्छा बैकबोन है। अगर ये सियाम आ जाए तो आपसे जो है ना लेप्रोस्कोपी वो आप कहीं गए, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ना, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जितना भी है, अच्छा वो करते हैं, ये काफ़ी आसानी हो जाएगी बिल्कुल जो है ना। ये अब तो बात की सर्जरी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो यहाँ PCA जो है ना हमारे पास, हम दीवार की जो है एक छोटा सा जो है ना धीरे के साथ ऑपरेशन करते हैं PCA में। और मैं बार बार जो है कह रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल है इस जगह का कि तो बहुत सारे लोग दूर जाते हैं उस छोटे से ऑपरेशन कराने के लिए, तो वो छोटा सा ऑपरेशन इस जगह पर हो सकता है क्योंकि ये सियाम कंपेटेबल है। अच्छा सियाम हमारे पास अवेलेबल है, छोटा से वो जो लेप्रोस्कोप वगैरह जो टूल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवा दी जाए तो यहाँ पे वो सर्जरी भी हो सकती है। और मैं तमाम लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ा अच्छा जो है ना अमल है। सबसे बढ़ के तो ये मैं कहूँगा कि सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, हमने बहुत सुना ऑपरेशन थिएटर होगा, न जाने कैसा होगा, लेकिन इतना अंजुमन के मुर्दारों ने इंतजाम किया कि हमें ये सब आपने सामने दिखा दिया। तो सीइंग इज बिलीव मोर दैन लिसनिंग एवरीथिंग। तो ये इतना आपने बिलीव किया है कि आप यकीन करें कि मुझे इस वक्त सतराहट अपने बुजुर्गों की जिन्होंने सड़क पे बैठ के जोन बनाई थी, मुझे इस कमरे में वो नज़र आ रहे हैं कि देखें वो जो तरह जलाया दुआ दूँ आप सबके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी अता फरमाए, खुशी अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। जरा आरोग्य के बारे में बता दो कितने सर फोटो क्लिनिक्स के बाद चलते हैं। आ जाए देखिए पानी इसमें से बड़ा है क्योंकि आज हमने पूरा फिलअप किया है। ये 5000 गैलन कैपेसिटी का मतलब पर मिनट जमेंगे 14 लीटर, पर मिनट 14 लीटर पानी हम लेगा। इस पानी को हम पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है कि जो हमारी पेशेंट है उसको सुधार के लिए इस्तेमाल करें, और सेकेंड ऑब्वियस की बात है कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी हम स्ट्रक्चर मिनरल डोजिंग कुछ इस तरीके से है कि ये इसको वाटर टैंक है, ठीक है। ये हमारा रॉ वाटर, ठीक है, रॉ वाटर हम अभी अब इसको डेमो भी दिखा। रॉ वाटर जो है ये पूरा प्रोसेस होकर जाता है, मेन प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं जितना भी नमक होता है वो सारा हम एक प्योरीफाइड रॉ वाटर को अच्छे वाटर से जिसको हम डिस्टिल वाटर है, हमारी मेडिकल टर्म में जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि ये पानी वो उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ क्वालिटी जब आपने देखा हुआ क्योंकि यही करी जाएगा हमारा मतलब सॉफ्ट एक कंफर्टेबल और एक पूरा प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। जो बूटी का जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। पूरे से के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हम फॉलो